Now this one, sectors of Indian economy. If you talk about this particular one, again you can expect 2 questions for 1 marks each, or 1 question for 2 marks, और 1 question for आपका 1 marks. ठीक है, तो जहां पे 1 marker क्वेश्चन कैन बी अराउंड सनराइज सेक्टर्स, जो हर बार पिछले 3-4 बार से पूछा जा रहा है. ठीक है, कौन सा सेक्टर है कौन सा नहीं, और फीचर ऑफ सनराइज सेक्टर. और अनदर क्वेश्चन इज आपका लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, क्वार्टनरी एंड आपका क्वार्टनरी एंड क्यूनरी सेक्टर्स. दीज आर ऑल्सो जो बहुत बार आपको एग्जामिनेशंस के अंदर आपका टेस्ट किए जाते हैं. ठीक है दोस्तों, सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, दोज हु जॉइनिंग. लाइक कीप जॉइनिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग बहुत बढ़िया से. और हमने यूनिट वाइज एमसीक्यूज आपका ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए 100% से. अगर आपने वो 4 मॉड्यूल अच्छे से देख लिए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें चीजों को, यू डू नॉट नीड अदर कंटेंट, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, दो आई विल कम अप विद द रिवीजन सेशन ऑल्सो. आज ही हम लोग करेंगे जस्ट आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, और कल से भी हम लोग रेगुलर करेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना. बट दिस इज समथिंग विच इज आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि INIFS it is a paper which is completely driven by the concept itself. If you know these particular concept well, you will be able to answer the your statement based things and all. ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, we all know around this particular one. Any doubt? So primary which generally deal with the agriculture and allied areas. Secondary आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है, थर्ड वन इज आपका टर्सरी विच इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द इंडियाज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक if you talk about the contribution wise sectorial contribution in our GDP, so tertiary sector which generally contribute the maximum portion. ठीक है, हमारे जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहां से, टर्सरी से, सेवा क्षेत्र से. ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जीडीपी. ठीक है, मोर देन 54%. And if you talk about the dependency wise, so we have maximum dependency on this particular one. ठीक है, so primary आपका which generally deal with agriculture, forestry, mining, these are the areas. ठीक है, basically it is associated आपका known as agriculture and associated areas, provide raw material for the production of goods and services. ठीक है, secondary आपका manufacturing this. ठीक है, बेसिकली इट इज ट्रांसफॉर्म वन गुड इनटू अनदर वैल्यू एडिशन. एंड आपका टर्सरी सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग एंड अदर्स ऑफर वैल्यूएबल सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स आपका. ठीक है, एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस. आई होप कि मैक्सिमम पीपल नो अराउंड दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो जो आपका बहुत बेसिक टॉपिक है जिनको हम अभी आगे भी रिवाइज करने वाले हैं, वहां पे विल नॉट टेक मच टाइम. ठीक है, आपका हाँ वन अनदर थिंग गाइस. ठीक है, सो डेवलपिंग कंट्रीज आपका सच इज इंडिया sector employ large portion, like as I said ki maximum dependency we have on this particular, that's why we easily handle situation like COVID-19. ठीक है, this is something आपका जहां पे we need highly skilled people and all. ठीक है, that is part of the service sector. Now these two sector are very important, quaternary sector and quinary sector. ठीक है, one question आपका statement based differences for 1 marks, or it can be related to a simple case and all. ठीक है, yes. हाँ, please go through this particular one. Santosh sir, do not worry about this INIFS. This year I'll make sure कि no one will like अगर if you are following things regularly. ठीक है, so this is the concern of so many people from the day they announced the admit cards and all. So after that I got lots of queries around the concept. I'll never suggest anyone कि go without concept, just practice MCQs. No. ठीक है, if you want that sort of confidence in your examination, so this is the kind of must thing. ठीक है, so quaternary sector which is also known as knowledge sector. ठीक है, it includes such as teaching, research and development. The sector is far most important in assessing the strength of economies, human resources. Quaternary and quinary is basically these are the part of service sector. सेवा क्षेत्र के अंदर ही दोनों आते हैं. ठीक है, क्यूनरी सेक्टर्स आपका हाईली नॉलेजेबल एरियाज आपका. ठीक है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशन इन ऑल. इट इंक्लूड एक्टिविटीज इन विच की चॉइसेस आर मेड, include highest level of decision makers in government including bureaucracy and private corporate sectors. The number of people participating in this particular one is quite small, yet they have regarded the brain behind the economies. It is also known as, प्लीज ध्यान रखिएगा इसको. ठीक है, आपका ब्रेन बिहाइंड एन इकोनॉमी दैट जनरली बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर वन आपका. ठीक है, सो दीज आर द सेक्टर्स.
now one another question based on revolution. ठीक है, so now this revolution based question you can face question related to आपका किस तरीके से हो सकता है, they can ask you to match the following. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको match the following में आ सकता है, or else it can be a half marks question, straight forward question आपका this revolution was like who was the founder or related to which in all, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन आपका बन सकता है. But for sure you guys are going to face one question based on this particular one. ठीक है, so we have revolution आपका. I'll not go for any kind of rectification in all, just I'll provide this particular PDF just after this session. I'll upload on application. So you have to go through this particular one just entering before your examination. ठीक है, कुछ एरियाज आपका जो वी विल प्रैक्टिसिंग विद द हेल्प ऑफ आपका MCQs एंड ऑल. अदरवाइज आई मतलब मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूंगा. ठीक है, सो वी नो ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, MS स्वामीनाथन, दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज आपका. ठीक है, सो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क एंड डेयरी, आई विल नॉट स्पेंड टाइम हियर. ठीक है, सो दिस इज आई गेस एवरीबडी नोज. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपका जो अगला पॉइंट हमारे पास है, दैट इज द जर्नी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, इंटरेस्टिंग, दैट कैन बी सम इन 4 phases आपका, बोथ प्री reform and post reform. ठीक है, so phase 1 1951 to 65, the period of industrial foundation. ठीक है, where we built number of industries and all. ठीक है, this is something related to आपका industrial sector or the secondary sector आपका. ठीक है, so secondary sector का overall journey that or the entire history can be divided among 4 areas. ठीक है, so first आपका 1951 to 65 industrial foundation, 65 to 80 आपका industrial fall, then आपका third one period of industrial recovery and 1991 onwards आपका post reform period आपका. ठीक है, so if you study the industries also, that can be further categorized among this and this can be a half marks question based on this particular one. ठीक है, तो एक हाफ मार्क का क्वेश्चन आपका जो यहाँ से आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है. नेक्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, सो आई विल गिव 2 स्टार टू दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो आपका सेक्टर्स, क्वार्टरनरी, क्विनरी, और मतलब one question will be based on primary, secondary, tertiary or quaternary or quinary. Another question will be based on आपका sunrise sector. Mostly it will be for half marks or one marks question. ठीक है, the features of sunrise sector. ठीक है, so इस तरीके से जो आपको question देखने के लिए मिलेगा. So a sunrise sector is a new emerging industry with the strong growth potential. It marked by the high growth rate, innovation and public awareness, attracting long-term investors. Sunrise sector in India, which include these many areas. These sectors are expected to drive job creations and business growth in the future also. So these are basically emerging areas of any economy. If you talk about the Indian economy, so these are some areas where we have a kind of a very high growth in the coming years. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं which generally attract the investment in large volume because invested they also have some sort of sentiments with these particular one कि their money will grow at a faster rate with these particular economies and all. ठीक है, so this is the kind of things जो आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखने. अब क्वेश्चन किस तरीके से होगा, this is like in this particular form you'll get some statement and you have to find out correct statement. So how they'll mention that particular one with please go through the statement related to sunrise sector, then they'll in the bracket they'll mention ki find out the most accurate or inaccurate statement about the sunrise sector. So if you talk about the statement, sunrise sectors are high growth, innovation driven and attract investors interest. Green energy, fintech, pharmaceuticals, these are some major areas where we have a robust areas. ठीक है, आपका retail and infrastructure are also part of this particular one. Sunrise sectors are often experiencing high competition and risk despite their early stage growth because everybody is coming to that particular market. These sectors contribute to job creation and business expansion in long run also. So this is something a kind of a summary for this particular one. Understood guys? Clear है? तो सनराइज सेक्टर आपका फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट वी हैव 2 मेजर एरियाज, ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ सेक्टर्स फर्स्ट, अनदर वन इज आपका सनराइज सेक्टर. ठीक है, और सम हाफ मार्क्स क्वेश्चन कैन बी देयर, सो वी आल्सो डिस्कस दोस पर्टिकुलर एरियाज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक सेक्टर्स इज आर करेक्ट? You have to find out the correct statement. So first,
The primary sector which provide raw material for production of goods and services. This is 100% true. ठीक है, primary sector that means it deal with agriculture and allied areas. ठीक है, so जो कहीं ना कहीं हमें सेकेंडरी सेक्टर के लिए आपका क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल आपका एंड ऑल. ठीक है, देन सेकेंडरी सेक्टर विच इज समथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज is also known as a service sector. No, ठीक है, this is wrong. ठीक है, the tertiary sector has been significant rise in employment shares in the recent years. This is also true. ठीक है, so statement 2 is wrong, so that means 1 and 3 आपका will be right answer for this one. So as we discussed yesterday also, if you talk about the Indian economy, if you talk about the GDP contribution, so contribution wise we have मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी आपका टर्सरी सेक्टर. ठीक है, आपका सर्विस सेक्टर्स, आपका सेवा क्षेत्र. ठीक है, देन आपका सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाइज. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी, so we have still also like employment dependency and all. ठीक है, so maximum dependency relies on agriculture sector or primary sector, then secondary, then tertiary. ठीक है, तो ये secondary जो है ना, it is secondary in all the cases. प्लीज ध्यान रखिए इसको, contribution में भी और आपका डिपेंडेंसी के ऊपर भी. तो आपको इसको ध्यान रखना है, you just have to flip these two. ठीक है, in case of GDP contribution आपका tertiary on top, आपका agriculture at last. In case of dependency, people's dependency, their sources of income and all, आपका प्राइमरी इज ऑन टॉप एंड टर्सरी एट लास्ट. ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे. ठीक है, सो विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एरियाज, व्हाट कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, आपका इंडस्ट्रीज, tertiary service sector like banking, insurance, education and all. ठीक है, and tertiary which has two broader areas. ठीक है, जिसमें दो अदर आपके सब कैटेगरीज भी आते हैं. वन इज क्वाटरनरी सेक्टर, अनदर वन इज क्यूनरी सेक्टर. ठीक है, so statement 2 was incorrect, and why it is incorrect we have discussed this particular one. Now with this particular chart itself we will start our learnings. ठीक है, start building concept. तो one by one we will go. First, primary sector, it include agriculture, forestry, then we have mining, our example of this particular one. Even the animal husbandry and all, they generally comes under this, known as agriculture and associated services or agriculture and allied activities. They generally comes under the primary sector. Provide raw material for production of goods and services. So this become a sources for your secondary and आपका for the production of goods and services. ठीक है, which we generally cater in our secondary and tertiary services. Unorganized and most of the time employ old methods. ठीक है, so this is something which is unorganized. ठीक है, आज भी आपका जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके एग्रीकल्चर के या अदर्स जो आपके वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो या अदर्स हो, वी जनरली फॉलो दोज पर्टिकुलर वन. ठीक है, इन मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज such as India, this sector employ a large portion of workforce compared to developed countries. ठीक है, तो in the like if you'll talk about US, Japan, ठीक है, so they are their dependency as well as their contribution in their nation's GDP that generally belongs to tertiary sector, but or tertiary and secondary आपका. ठीक है, mostly. But in case of developing and underdeveloped nations, ठीक है, the maximum dependency is still लाइज हियर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका आज भी हमारा जो डिपेंडेंसी लेवल है वो किसके ऊपर है, आपका एग्रीकल्चर के ऊपर है. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल स्केल यूनिट्स, मेजर एंटरप्राइजेस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूडेड इन दिस. ठीक है, द इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ऑफन नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. ठीक है, ट्रांसफॉर्म गुड्स, वन गुड्स इनटू अनदर बाय वैल्यू एडिशन टू इट, organize and employ more efficient production method. Okay, so it is organized. Let's say if you are involved in car manufacturing, so कैसे कार मैन्युफैक्चर होंगे या ओवरऑल जो इंडस्ट्री वाइज है आपका. ठीक है, वी हैव सम सेट स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, एंड इवन देयर आर लाइक ऑन डेली बेसिस वी डू हैव सम सॉर्ट ऑफ इनोवेशन in that particular sector. ठीक है, like uses of robotics in car manufacturing, that is a new kind of innovation, right? So that is generally part of this. Since this sector require a particular set of
talent, the employment rate is kind of equilibrium. ठीक है, तो अगर आप देखते हैं डिपेंडेंसी लेवल का या कंट्रीब्यूशन का, तो ये हमारे इकोनॉमी के रेफरेंस से भी आपका इट कम्स एट द सेकंड पोजीशन, कंट्रीब्यूशन वाइज भी और आपका, और इवन एम्प्लॉय वी नीड स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों का ही आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगेगा. ठीक है, टर्सरी सेक्टर थर्ड आपका तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र. ठीक है, द सेक्टर इन्वॉल्व बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑल, known as service sector, offer valuable services to primary and secondary sectors. It is a well organized and use advanced logistic techniques to carry out its task, like uses of AI, blockchain, these kind of technologies in banking, which generally help or which generally helping our institutions to increase customer satisfaction to delight, right? So that is the kind of things. This sector employment share has risen dramatically in recent years. ठीक है, तो पिछले कुछ समय में अगर हम देखते हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है आपका यहाँ पे, दैट ग्रोथ इज लाइक बिट हाई. ठीक है, और अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ, सो इट अगेन इट कम्स एट द एंड इटसेल्फ. ओके, तो ये आपको अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एंड पोर्शन पे ही आपका देखने के लिए मिलेगा. नाउ दिस, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. प्लीज डू रिमेंबर दिस. दिस टर्सरी सेक्टर, इसमें आपका दो और सेक्टर हैं. ठीक है, वन इज क्वाटरनरी सेक्टर, अनदर वन इज क्यूनरी सेक्टर. ठीक है, क्यूनरी इज काइंड ऑफ द ब्रेन स्ट्रॉमिंग थिंग्स इन ऑल, कमिंग विद न्यू आइडियाज इन ऑल, एंड जो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़े लेवल के इम्पैक्ट आपको डालते हुए देखेंगे. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ क्वाटरनरी इज समथिंग नॉलेज सेक्टर. ठीक है, जैसे टीचिंग है या आपका कंडक्टिंग रिसर्च डेवलपमेंट्स, they generally comes under this one. And believe me guys, these two sectors are very important. You have to be very clear about the examples which given in this particular one, क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत अच्छे से समझना है, because there is a high probability you may get question based on these two. ठीक है, so quaternary sector, which is also known as knowledge sector, this category include activities such as teaching, research and development. This sector is by far the most important in assessing the strength of an economy's human resources. The intellectual aspect of the economy is represented by quaternary sectors. ठीक है, तो कितना मतलब कितना परसेंट पॉपुलेशन उसका इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वॉल्व है, दैट जनरली रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसे होते हैं ना पेटेंट फाइलर्स होते हैं. ठीक है, लाइक एज मेनी पेटेंट्स वी आर फाइलिंग थ्रू आउट द इयर्स, सो दैट इज शोइंग द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, जिसमें मतलब हमारा नंबर भी इज वेरी गुड. हाँ, this group include employee in office building, elementary school, university classroom, hospitals and physicians offices. Then we have theaters, and we have accountancy and brokerage business and so on. तो these are some examples कहाँ कहाँ पे ये लोग आपका काम करते हैं. ठीक है, क्यूनरी सेक्टर्स द फाइनेस्ट वन आपका. ठीक है, मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर जो सबसे टॉप नोच पर आपका रहते हैं, दे आर जनरली कम्स अंडर दिस. इट इंक्लूड एक्टिविटीज इन विच की चॉइस आर मेड. इट इंक्लूड द हाइएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स इन गवर्नमेंट्स, इंक्लूडिंग देयर ब्यूरोक्रेसी and their private corporate, even the private corporate sector also, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो हैं या डायरेक्टर्स हैं. ठीक है, मोस्टली द नंबर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेक्टर इज क्वाइट स्मॉल, yet they are regarded the brain behind the economy's socio-economic performance. ठीक है, तो basically these are the person who generally running the economy itself. ठीक है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग से पूरा इकोनॉमी आपका चल रहा होता है. ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड ऑक्यूपेशन सच एज सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपका. ठीक है, जैसे जो पीएमओ का पार्ट होते हैं मोस्टली आपका, ब्यूरोक्रेट्स जो आपके हैं. ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट आपका, फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर्स and others आपका. So they generally comes under this. So this is the difference. Now you have to answer the next question. All right, चलो बताओ. तो we have a situation about the quaternary and quinary sector. ठीक है, so we have two person. One is Dr. Meera Sharma, a senior research scientist
working at a leading biotechnology firm. Her daily responsibility include conducting research, developing innovative medical solutions, and publishing scientific paper. She collaborate with universities and research institutions to advance knowledge in जेनेटिक मेडिसिन्स, ठीक है। तो ये कहाँ से आपका आपका क्वार्टरनरी सेक्टर से है, ठीक है। सो क्वार्टरनरी सेक्टर से आपका, ठीक है, व्हाट आई कैन इंटरप्रेट दिस वन, ठीक है, असेसिंग द स्ट्रेंथ, आपका टीचिंग, रिसर्च एंड आपका डेवलपमेंट, ठीक है, जहां से इसका लिंक बनना है, ठीक है। मीनवाइल हर हस्बैंड मिस्टर रोहन शर्मा इज अ सीईओ of a multinational corporation. He is responsible for making high-level strategic decisions, overseeing companies' policies, ensuring the financial growth of the organization. He frequently interacts with government officials and financial advisors to navigate regulatory and economic challenges also. ठीक है, तो based on the given scenario, which of the following statement is correct? ठीक है, तो अब ये क्या है, quaternary, and this is आपका क्यूनरी, ठीक है। सो डॉक्टर मीरा शर्मा क्वार्टरनरी एंड मिस्टर रोहन शर्मा बिलोंग्स टू क्यूनरी, ठीक है। सो डॉक्टर मीरा शर्मा वर्क एज क्यूनरी, नो ये नहीं होगा, डॉक्टर मीरा शर्मा एज क्वार्टरनरी सेक्टर वाइल रोहन शर्मा वर्क एज अ क्यूनरी सेक्टर. So option B will be right answer for this one. I hope you get this particular question clearly. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. समटाइम दे एंटर इनटू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो वहां पे आपको इस तरीके के रेफरेंसेस के साथ जो क्वेश्चंस हैं आपको वो देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरियस रिवोल्यूशंस इन इंडिया आर करेक्ट. ठीक है, सो रिवोल्यूशंस आपके वी हैव ह्यूज लिस्ट अबाउट द रिवोल्यूशंस. ठीक है, एंड हर साल आपका एवरी ईयर समटाइम इट इज फॉर हाफ मार्क्स, sometime it is for 1 marks, something like this. sometime it can be for same question can be for 2 marks also. ठीक है, वो आपको मैच करने के लिए भी दे सकता है. जैसे आपका एक साइड उसने आपको ईयर जैसे रेवोल्यूशन का नाम दिया, दूसरा वो किससे रिलेटेड है और कौन से ईयर में आपका है, इस तरीके का मैच भी हो सकता है. और आपका वो सिंपली दो चीजों का मैप भी हो सकता है. ठीक है, एंड व्हेनेवर दे विल कम अप विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल गिव यू 2 मार्क्स. ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है. इफ यू नो फ्यू थिंग्स, ठीक है, अगर आप जैसे इसमें कितने स्टेटमेंट है, 7 स्टेटमेंट, इफ आउट ऑफ 7 इफ यू नो एनी 4 आई कैन बेट कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो जाते हैं. सबसे पहले आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो सबसे पहले भी था इंडिया में आपका. ठीक है, 1966 to 78 वर्गीस कुरियन. ठीक है, सॉरी MS स्वामीनाथन. वर्गीस कुरियन वाज रिलेटेड टू व्हाइट रेगुलेशन. एग्रीकल्चर बाय MS स्वामीनाथन, पहला बिल्कुल सही. ठीक है, 100% ट्रू. अब देखो पहला इसमें सब में पहला है. ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है. दूसरा द व्हाइट रेवोल्यूशन 1970-96 also known as Operation Flood was led by वर्गीस कुरियन to boost milk production. दूसरा सही है, दूसरा सब में सही है. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत स्मार्ट ढंग से ये क्वेश्चन बनाया गया. ठीक है, सो दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक तो मतलब 4 तो आपके सही हैं ही. अगर आपको टाइम बचाना है तो इन चारों को आप स्किप भी कर सकते हैं. ठीक है, बट हमें नहीं बचाना अभी, हमें समझना है. ठीक है, येलो रेवोल्यूशन आपका, ठीक है, मस्टर्ड सीड से रिलेटेड आपका हुआ करता था. ठीक है, was related to oil seed आपका and was led by Sam Piroda. ठीक है, Sam Piroda 86 to 90s. देन फोर्थ वन इज आपका ब्लू रेवोल्यूशन, फिशरीज से रिलेटेड आपका फिश प्रोडक्शन से. ठीक है, सो आपका 1973 to 2002 फोकस ऑन फिश एंड एक्वाकल्चर एंड वाज लेड बाय अरुण कृष्णन. ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट तो हमारे सही हैं. ठीक है, अब जो गेम आपका बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेटमेंट. इफ यू नो द नेक्स्ट वन, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पहला ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे. सिल्वर रेवोल्यूशन 1969 to 78 आपका एग से रिलेटेड था. ठीक है, बूस्टेड एग प्रोडक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. सो दिस इज अगेन 100% ट्रू. दैट मीन्स आफ्टर रीडिंग 4 स्टेटमेंट वी आर एबल टू एलिमिनेट हाउ मेनी ऑप्शंस, ओनली 1 ऑप्शन. ठीक है, तो बी तो हमारा गया. ठीक है, अब आते हैं 6 के ऊपर. 6 से हमारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा जितना समझ में आ रहा है ऑप्शंस में देख के. ठीक है, सो आपका द गोल्डन रेवोल्यूशन. ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था आपका, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था आपका, फ्लावर्स से रिलेटेड या अदर्स. ठीक है, 1991 2003 दिस इज ईयर इज टाइम फ्रेम इज करेक्ट.
एसोसिएटेड विद व्हीट एंड राइस, नो, दिस इज आपका वो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका था, लेड बाय निरपक टुटेज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेड बाय निरपक टुटेज 1991-2003, but the objective which is mentioned here that is wrong, that means option 6 is wrong, ठीक है, that means आपका ये भी चला गया और आपका 6 इसमें दिया, ये भी चला गया, that means for sure our answer will be option D, ठीक है. The Evergreen Revolution 2014 to 2022 aimed at overall agriculture production and was introduced by Dr. M.S. Swaminathan. ठीक है, so this is also true आपका, ठीक है. So option D should be right answer for this particular one, right? So the only incorrect statement was statement 6. Golden Revolutions, the year was right, and it is related to fruit, honey, हॉर्टिकल्चर्स, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू व्हीट एंड राइस आपका, ठीक है. तो अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है. सो आई विल नॉट रिकमेंड कि गो फॉर एनी काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन एंड ऑल, ठीक है. जस्ट हैव अ लुक अराउंड दिस पर्टिकुलर वन एंड बिफोर एंटरिंग इनटू योर एग्जामिनेशन हॉल दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर क्विक रिविजन पार्ट, ठीक है. दैट वी विल डेफिनेटली डूइंग बिफोर योर, आई विल रिलीज वन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. तो जहाँ पे मतलब हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आई विल कम अप विद one quick revision session that I did with BFM last year, and that was very helpful for all candidates. So same I'll do with all the 4 subject of GIB also, ठीक है. तो यहाँ पे that will be for sure that this will be part of that particular one, ठीक है. क्योंकि एक क्वेश्चन आपका रेवोल्यूशन, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, देन आपका फादर एंड आपका पीरियड, ठीक है. सो MS स्वामीनाथन 1966-78, व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, वर्गीस कुरियन, ठीक है, 70 to 96. येलो रेवोल्यूशन आपका ऑयल सीड, ठीक है, सैम पित्रोदा 86 to 90. ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिशरीज, फिश एंड एक्वाकल्चर, डॉक्टर अरुण कृष्णन 73 to 2002. गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर, निरपक टुटेज 1991 to 2003. Golden fiber is related to jute and 91 to 2003. Silver revolution आपका egg से related, ठीक है, इंदिरा गांधी 1969 to 1978. Silver fiber revolution is related to cotton 2000. Then we have pink revolution आपका pharmaceutical, prawns and onions, ठीक है, pharmaceuticals, prawns, onions, ठीक है, 3 अलग अलग एरियाज आपके इसके अंदर, ठीक है. अगेन आपका दुर्गेश पटेल 1970. ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, कोका, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है. आपका जो फाउंडर थे और जो आपके जिन्होंने थ्योरी दिया था, फादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हिरलाल चौधरी. देन वी हैव रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स, ठीक है. आपका एवरग्रीन रेवोल्यूशन आपका ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. ब्लैक रेवोल्यूशन आपका पेट्रोलियम. राउंड रेवोल्यूशन आपका पोटैटो एंड प्रोटीन रेवोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर, ठीक है. दिस इज आपका एग्रीकल्चर एंड कॉइन्ड बाय नरेंद्र मोदी एंड दिस इज MS स्वामीनाथन 2014 to 2022, ठीक है. सो दिस इज द लिस्ट आपका जो हमारा एंड मतलब दैट विल बी पार्ट ऑफ आर आपका एग्जाम बिफोर डे का या बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल. सो वी विल रिवाइज दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. प्रैक्टिस से जितना याद रहेगा बेहतर है, ठीक है. और आप देखोगे चीजों को तो उससे भी चीजें समझ में आना स्टार्ट होगा. बट लाइक आई एम नॉट सेइंग कि गो फॉर एनी काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं गाइस. in which decade did India's agriculture sector contribution to GDP first drop below 30%, ठीक है. So it was 1990-91, ठीक है, 91-92. So where it was around 29%, and this is the very first time when the contribution of agriculture sector came down below this 30% benchmark, ठीक है. So for the very first time, और उसके बाद धीरे धीरे ये कम होता गया, ठीक है. So 1990-91 contribution of agriculture and allied sector to GDP dropped to 29%, making the first time it fell below 30%, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है. So GDP contribution of different sectors, ठीक है. So GDP contribution of different sectors, ठीक है. By late 1990s, India had transitioned from agriculture dominance to service supremacy, ठीक है. With services accounting for overall half of her national GDP, ठीक है.
आज भी जो आपका है, ठीक है, लाइक वी हैव मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, बट बिफोर 90s it was like contribution from agriculture was at a higher side, ठीक है, and this is a kind of a process which is part of every nation's development, ठीक है. So whenever you move from developing to develop, your contribution that generally automatically increase through that particular one, because if we talk about the development parameters and all that, so we just like अगर जो high yield earnings आपकी जो होती हैं, that generally belongs to service and all these kind of things, ठीक है. तो agriculture आपका that is like dependency wise that is always the most important part, ठीक है. जैसे मैंने आपको कोविड के समय का कल एक डेटा शो किया था, ठीक है. So our two sector was in contraction phase or negative phase. Agriculture during that period also which accounted a 3% growth rate, ठीक है, and that was the only reason कि यहाँ पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपका नहीं हुआ, ठीक है. प्रॉब्लम हुआ डेवलप नेशंस के अंदर भी, वी सॉ सम एग्जांपल्स, जैसे यूएस के अंदर भी लूटपाट हुआ, बट इंडिया में नहीं होने का रीजन कि एटलीस्ट वी हैव दैट मच ऑफ थिंग्स इन आवर हैंड कि वी कैन सर्वाइव, ठीक है. सो दैट इज द वन, ठीक है. सो विद द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट फॉर बाली 18% ऑफ टोटल जीडीपी. तो आज के डेट में ये अराउंड कितना है आपका 18% आपका एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन. द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 55%. अब ये जो डेटा है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, बट हाँ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है. इसके अराउंड का जो चीजें आपकी है, ठीक है, 55%. एंड सेकेंडरी सेक्टर विच जनरली कॉन्ट्रीब्यूट द 27, ठीक है, with only 14% from manufacturing sector itself, ठीक है. So 27 में से भी 14% which generally comes from the manufacturing, ठीक है. The table which generally shows the economic contribution, जैसे अगर हम लोग बात करें आपका 1950 51, सो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन वाज लाइक 52%, ठीक है. दैट टाइम आपका एग्रीकल्चर वाज दिस, सर्विस वाज दिस, ठीक है. इफ यू कम डाउन, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, यू डू नॉट हैव टू memorize all these particular things, ठीक है. सो 2021-22 की अगर हम बात करते हैं, सो एग्रीकल्चर विच केम अराउंड 18%, अभी भी इसी के अराउंड है, ठीक है. और आपका इंडस्ट्री 28% एंड आपका 53% के अराउंड है आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है. तो if examiner will ask something related to data, they are not going to ask you what was in 2000 या others, ठीक है. वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, मिनिमम कहाँ से है, या रैंकिंग के हिसाब से आपको अरेंज करने के लिए देगा, नॉट लाइक दिस कि वो आपसे एग्जैक्ट डेटास को लेके चल रहा होता है. दे ऑल्सो नो दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया आर नॉट करेक्ट, ठीक है. सो like most inaccurate statement about the agriculture sector, ठीक है. और which of the following statement is incorrect about agriculture sector, ठीक है, कौन सा गलत है. agriculture sector account for 17.8% of India's GVA for 18-19. this is true. और अगर कभी ऐसा डेटा जाए ना तो सही पे चले जाना, टेंशन मत लेना, बिना सोचे समझे. नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च इन 2018, नहीं, ये कब आया था, 2016 के अंदर आया था. यहाँ पे चांसेस वो आपको देगा, ठीक है. दिस इज रॉन्ग. इट वॉज लाइक जो आपका क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका था, ठीक है. सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम वेयर वी हैव अ मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंटर. It work at a 90:10 ratio, ठीक है. 90% contribution from center, 10% from state government, ठीक है. टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज फाइन कि जो हमारे क्रॉप्स है उनका इंश्योरेंस के लिए काम करता है, ठीक है. द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया एज लैंड यूज स्टैटिस्टिक 2016-17 इज no, this is not 100%, this is about 150% और 146 और समथिंग के आसपास आपका ये था, ठीक है, जितना मैं इसको रिकॉल कर पा रहा हूँ. So what we have to find out, incorrect, these two statement are incorrect, 2 and 3 आपका. So C should be right answer for this one. I just want to check the option C data. Yes, 143%, ठीक है, 143.6% आपका, ठीक है. That is 143.6% आपका, ठीक है. So that is the one. So let's discuss about this one, ठीक है. So agriculture play a vital role in India's economy. 54.6% of total workforce engaged in agriculture. Dependency. Today itself, we have maximum dependency on agriculture. ठीक है? About 54% of India's population, they generate their income from agriculture sector. ठीक है? Agriculture and allied activities. ठीक है? Census 11. Account 17.8% of India's GDP. India की जो overall GDP है उसका 17.8% we generally get from this one as per this. ठीक है.
given the importance of agriculture sector, government of India has taken several steps for its development in sustainable manner. Steps have been taken to improve the income of farmers, like mitigate risk. We come up with Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which was launched in 2016. Scheme such as uh, formation and promotion of 10,000 FPOs. ये बजट के दौरान आपका अनाउंस किया गया था, ठीक है. सो फार्मर्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग, ठीक है. हाँ, क्या था आपका फॉर्मेशन एंड प्रमोशंस ऑफ 10,000 FPOs एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स अंडर नाबार्ड, ठीक है. दिस वर्क अंडर द नाबार्ड, ठीक है, AIF have been also launched recently to benefit the आपका दिस सेक्टर, ठीक है. तो इसके अलावा भी जैसे आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स विच ऑल्सो लिंक विद एलाइड एक्टिविटीज ऑफ दिस, ठीक है. और ये उसी रो में आपका एक नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपका जो लॉन्च किया गया था, ठीक है. नेक्स्ट वन गाइस, which of the following statement about India's industrial sector are correct? India's industrial sector, the second sector. The manufacturing sector account around 18% of total GVA, 18% of total GVA, right? The construction sector contribute approx not 12%, ठीक है. देखो कंस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, आपका सेकेंडरी सेक्टर, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 8%, ठीक है. नॉट मतलब अगर आपने सेंसस वाला डेटा कभी पढ़ा होगा तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा. विल चेक दिस वन, ठीक है. दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है. द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP मेजर द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द गिवन ईयर, ठीक है. IIP के डेटा के हिसाब से जो आपके मतलब अगर हम खाली मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इट हैज 4 कोर एरियाज. उनके बेसिस पे द इंडस्ट्रियल सेक्टर divided into 4 subsectors. True, this is correct. Yeah. The index for core industries is calculated by NSO. That is also true. पहले हम इसको आपका CSO के नाम से जानते थे. So आपका CSO and NSSO को मिला करके आपका we come up with NSO. ठीक है. So first, third, 4, 5. First, third, 4, 5. That means option D should be right answer for this particular one. ठीक है. I just want to check that data. हाँ, 8% आपका 8% of GVA, ठीक है. This is right, ठीक है. ये आपका जो गलत डेटा था, ठीक है. रेस्ट ऑल आर फाइन, ठीक है. स्टेटमेंट 4 आपका जो करेक्ट था, जिसमें द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 सब सेक्टर्स. कौन कौन से हैं? माइनिंग एंड क्वेरिंग, देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. We have power, gas, water supply and other utility services and construction. Out of these 4 sectors, maximum contribution we generally got from this one, ठीक है. तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ से. लाइक ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज, वी हैव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट विच इज वी जनरली जनरेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर. मतलब एम्प्लॉयबिलिटी की मैं बात कर रहा था, सॉरी, ठीक है. सबसे ज्यादा आपका एग्रीकल्चर पे होती है, ठीक है. दूसरा अगर हम सेकेंडरी में बात करें, सेकेंडरी सेक्टर आपका सेकेंड, जहां पे कंस्ट्रक्शन इज द टॉप मोस्ट, ठीक है. द जर्नी ऑफ इंडियन industry is quite interesting and can be summarized into 4 phases including both pre-reforms and post-reforms, ठीक है. तो ये 4 phases कौन कौन से हैं? One is आपका phase 1, ठीक है, 1951 to 65, the period of industrial foundation where we build up लाइक जो बड़े बड़े आपके जैसे बोकारो स्टील प्लांट्स है, ठीक है, या अदर्स ऐसे जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का सेटअप था, दैट वी डिड स्पेशली ड्यूरिंग द सेकंड 5-year प्लान, ठीक है. सो फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. अगला जो टॉपिक होगा वही होगा, क्योंकि ठीक है. एंड सेकंड 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन दी आपका द ओवरऑल प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ऑल, ठीक है. तो यहाँ से देन सेकंड फेज आपका 65 to 80, जहाँ पे बहुत सारे फेलियर्स हमें देखने के लिए मिले, ठीक है, इंडस्ट्रियल फॉल जिसको हमने बोला, ठीक है. फेज 3 आपका 1980 to 91, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी. एंड द फेज 4 इज ऑनवर्ड्स आपका पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों. चलो आगे बढ़ते हैं. Which subsector of service industry contributed the highest percentage to India's GVA in 1920 और या ओवरऑल आपका अभी भी, ठीक है. तो सबसे ज्यादा आपका जैसे जो फाइनेंस है, ठीक है, हमारा जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, ये है, ठीक है, आपका, ठीक है. दीज ऑल आर द सब सेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. ये सारे सब सेक्टर्स हैं आपका
सर्विस सेक्टर के, एंड इनमें से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वी हैव फ्रॉम फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दैट जनरली राइज फ्रॉम दिस, इट इज अबाउट आपका 21.4% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो जो हमारा जीवीए का जो ओवरऑल ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, उसका मतलब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वी हैव फ्रॉम अबाउट 50% कंट्रीब्यूशन वी हैव फ्रॉम सर्विस सेक्टर, उसमें भी 21% आपका वी हैव फ्रॉम फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड ऑल। दे जनरली कंट्रीब्यूट दिस मच। ओके, तो अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, एज पर द फाइंडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, this NSO that generally work under the MOSPI। ठीक है, MOSPI is a ministry जिसके अंदर NSO, पहले जो CSO and NSSO होता था, NSSO was basically for data collection and CSO was decision making, then we club both the entities and we created NSO। ठीक है, तो MOSPI आपका जो मिनिस्ट्री है उसके नीचे आपका NSO। ठीक है, 1920 जैसे जितना भी आता ना advanced estimation about the budget or the economy, so they released by this particular ministry। In the year 1920, the share of service sector was 53%। overall आपका like we have 53-54% contribution from the service sector। अगर हम इसका ब्रेकअप करते हैं, 18.3% from trade, hotels, transport, communication services, ठीक है, related to broadcasting and all। ठीक है, 21.4% is from financial, real estate and professional services, services public, ठीक है, and 16% आपका 16.6% from public administration, defense and other services। ठीक है, so as per the World Investment Prospectus 21 by a UN Conference on Trade and Development, India in 2020 was the 5th largest recipient of FDI। सबसे ज्यादा मतलब FDI अगर अट्रैक्शन की बात करें, अभी हम लोग this number got improved। ठीक है, so most of the time we are at फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आपका पिछले कुछ सालों में। ठीक है, इंडिया हैज मेड अ ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन बीइंग among the top 10 service exporter countries। India's sorry, and Indians dominance in software is globally respected। Of the total of net service export, about 40% pertain to softwares। ठीक है, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं इतना जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की तरफ से। ठीक है, next question, I have already answered this question। which sector is the second largest employment provided in India after agriculture। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन एट सेकंड पोजीशन। ठीक है, सो एग्रीकल्चर जहां से सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, आज के डेट में डिपेंडेंसी का, कंस्ट्रक्शन एट सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ डेटास आपके हैं। सो फर्स्ट वन आपका प्राइमरी सेक्टर, अगर हम लोग बात करें रूरल प्लेस ऑफ रेजिडेंस 66.6, अर्बन आपका 8%। ठीक है, मेल और फीमेल इतना, टोटल इज 48.9%। ठीक है, सो ओवरऑल डिपेंडेंसी और एम्प्लॉयमेंट्स बेस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर इज आपका 48.9%। ठीक है, सेकेंडरी आपका, ठीक है, जहां पे वी हैव 24.10 एंड टर्सरी आपका 26.8% का जो ओवरऑल डिपेंडेंसी लेवल है एज पर दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, और सॉरी आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट्स आपका जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट्स है दैट इज दैट जनरली गिवन इन अंडर दिस वन। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। चलो अब आता है आपका सनराइज सेक्टर, सेकेंड लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर करेक्ट। सनराइज का मतलब यहाँ पे है कि ये आपका ग्रोइंग सेक्टर्स हैं। ठीक है, सो जहाँ पे रैपिड एक्सपेंशन आपको देखने के लिए मिल रहा है या आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर जहाँ पे भी ऐसा होगा तो कंपटीशन आपका हाई होगा, एंड जैसे आपका जैसे मतलब जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है या बैंकिंग में भी बहुत सारे स्कोप है, फिनेंस के अंदर है या एजुकेशन के अंदर है या किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका। ठीक है, सो अ सनराइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रोथ रेट, इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। बिल्कुल सही। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेक्टर सच एज ग्रीन एनर्जी, बिल्कुल, फिनटेक, फार्मास्यूटिकल्स आर एग्जांपल ऑफ कोर एग्जांपल, सबसे जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो आपका जिसको अट्रैक्ट करें पिछले कुछ समय में। ठीक है, रिटेल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज सनराइज, नो दे कैन बी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आपका रिटेल वाला नहीं हो सकता। ठीक है, रिटेल इज
लाइक समथिंग इट कैन बी रिलेटेड टू रिटेल, आपका फिनटेक्स हो सकता है या फिर कोई और सर्विसेज विच इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Sunrise sector typically experience low competition. No, they experience high competition and maximum risk due to early stage development. It can be, but this is wrong. Okay? These sectors play a crucial role in job creation and business expansion in long run. Yes, it can be. Okay? These sectors play a crucial role in job creation and this correct. तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एंड पांचवा, ठीक है, सॉरी, पहला दूसरा इन फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ आपका, ठीक है. ऑप्शन ए ओनली विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है. तो हमारे करेक्ट आंसर्स क्या थे, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ आपका, ठीक है. सो ए इज द राइट आंसर. 3 retail and infrastructure are part of this one, ठीक है. Statement 4 is sunrise sector often experience high competition and risk despite their early stage growth, ठीक है. तो सेकंड लाइन सही था, बट लो कंपटीशन वाला पार्ट वाज रॉन्ग, ठीक है. सो सनराइज सेक्टर, so a sunrise sector is one that is still in its infancy but has the potential for significant growth. The sector is often characterized by strong growth rate, a high degree of innovation, high level of public awareness, with investors with investors attracted to its long-term growth prospectus. ठीक है. Existing Indian industries that may be categorized as sunrise sectors are likely to benefit the economy in terms of job creation and business growth in the future. Like we have green energy, renewable energy and all. Fintech, आपका information technology, electronics, pharmaceuticals, automobiles, healthcare, infrastructure sectors, retail sectors, processing plants, and other emerging sectors of Indian economy are part of sunrise sectors. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो. Which of the following statements, so sorry, fill the following statement, ठीक है, so fill in the blanks. The sunrise sectors in Indian economy have signifies industries that have, क्या होगा आपका, promising future आपका, ठीक है. तो promising future आपका इसका पहला जो ऑप्शन होगा, ठीक है. देखो, जस्ट स्टार्टेड नहीं होगा, प्रॉमिसिंग फ्यूचर आपका मीन्स इन दोनों में से एक आपका आंसर होने वाला है, ठीक है. इन दोनों में से, सॉरी, ठीक है, 1 और 3 में से, ठीक है. दीज सेक्टर्स शो इन टर्म ऑफ रेवेन्यू एंड अपॉर्चुनिटीज हाई ग्रोथ आपका, ठीक है, और रैपिड ग्रोथ आपका, ठीक है. जैसे रैपिड ग्रोथ है, यस, बट ये पहले ही हमारा कट चुका है, तो आपका स्लो ग्रोथ मीन्स नो. पहला ऑप्शन भी आपका खत्म हो चुका है, रैपिड ग्रोथ, ठीक है. तीसरा आपका वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सनराइज सेक्टर इज आपका जैसे IIT इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आपका ये करेक्ट होगा. तो तीसरा ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू NCEU, ठीक है, इट इज अ कमीशन अबाउट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है. एंटरप्राइज अनऑर्गेनाइज्ड कमीशन, एंटरप्राइज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आई जस्ट फुल फॉरगेट द नेम, ठीक है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से. हाँ, इट इज नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है. नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल सेंटर फॉर एंटरप्राइज, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्लासिफिकेशन, which of the following condition must be simultaneously satisfied for an enterprise to be classified as a part of unorganized sector, ठीक है. तो किसकी वजह से कोई भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपका क्लासीफाई होगा, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, इट इज अ नेशनल बॉडी कमीशन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एड्रेस इशू फेस बाय एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की आपकी जो भी इश्यूज हैं आपका, दिस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल to highlight those particular one. The commission was established in 2004 under the chairmanship of Dr. Arjun Sengupta to act as advisory board of matters regarding the informal employment sectors. It is under Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. So National Commission for Enterprise in Unorganized Sectors. ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा लर्निंग हो जाएगा हमारा. It must
unincorporated employ fewer than 10 workers and operate on a proprietary or partnership basis. It must be unincorporated, employ a fewer or less than 10, or operate on a proprietary or partnership firm. It can be, ठीक है. It must be legally recognized, no, ठीक है. Unorganized is basically where we do not have proper rules and regulation and all, ठीक है. तो पहला this यहाँ पे must pay wage lower than this, no. It must employ only informal workers and operate outside urban area. See this आपका the second part is wrong, ठीक है. It must not engage in commercial activities and no. So option A will be right answer for this particular one, ठीक है. So an unorganized enterprise is an unincorporated private entity. Unincorporated means, देखो incorporation का मतलब होता है it is generally used for the joint stock company, ठीक है, that is a registered firm, ठीक है. So this is unincorporated, ठीक है. वो कोई मतलब ऐसा कोई बड़ी मतलब पब्लिक कंपनी की तरह या जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह काम नहीं कर रही हो, ठीक है. पहली चीज, प्राइवेट एंटिटी ओन बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, दैट मीन्स प्रोपराइटरी आप या पार्टनरशिप फर्म की तरह काम कर रही है. इंगेज इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन आपका, ठीक है. एंड ऑपरेटिंग विद आपका फ्यूअर देन 10 वर्कर्स ऑन अ प्रोपराइटरी और पार्टनरशिप बेसिस, ठीक है. सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ NCEUS, ठीक है. सो अब इसके साथ वी वांट टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है. इंपॉर्टेंट है अगेन बट अंडरस्टैंडेबल है, एक बार स्टडी से समझ में आ जाएगा. So differences between organized and unorganized. Organized is like your banking system, ठीक है. So we have a proper regulators, rules, regulations, do's down, ठीक है. Unorganized आपका जहाँ पे we do not have these kind of clauses, मतलब एक प्रॉपर एक रेगुलेशन गवर्नेंस और ये सब इन चीज़ों की कमी है, ठीक है. तो दैट इज द वन. तो जैसे आपका जैसे कोई शॉपकीपिंग है, ठीक है, फार्मिंग है, आपका डोमेस्टिक वर्कर्स हैं. ऑर्गेनाइज की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन ऑल, ठीक है, दे जनरली कम्स, ठीक है. सो आपका मीनिंग ऑर्गेनाइज, it is a sector where employment terms are fixed and regular and the employee get assured work, ठीक है, कि इतना आपको काम मिलेगा, इतना काम करना है, इतने आवर्स का जो भी आपका है, ठीक है. Unorganized sector is characterized by small and scattered unit which are largely not registered with the government, ठीक है. Governed by various act आपका, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, बोनस एक्ट है, आपका PFRDA मिनिमम वेज एक्ट है, या फिर आपका कंपनी एक्ट की तरफ, दे मोस्टली रजिस्टर्ड है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है. सो आपका जहाँ पे दैट एक्ट गिव देम नेम एज अ कंपनी, की सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट की दिस इज द कंपनी, ठीक है, जहाँ पे डिफाइन किया गया. सो नॉट गवर्न बाय एनी एक्ट आपका, ठीक है. गवर्नमेंट रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो, ठीक है, जैसे मिनिमम वेज से रिलेटेड हो या अदर्स हो, ठीक है. यहाँ पे नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, मनमर्जियां चलेंगी, ठीक है. रेम्यूनरेशन आपका रेगुलर मंथली सैलरी, इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन डेली वेजेस एंड ऑल, ठीक है. जॉब सिक्योरिटी, यस, वर्कर एंजॉय द सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे नो, employment is not secure, people can be asked to leave without any reason, but in this case if there is some sort of आपका layoff and all even, so you have to give them proper notice period and all, ठीक है. वर्किंग आवर्स आपका यहाँ पे फिक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉट फिक्स होते हैं, ठीक है. अब अपने पे महीने लगाना है इनको, ठीक है. सैलरी ऑफ वर्कर्स एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, ठीक है. सो मिनिमम वेजेस इन जो आपको होते हैं, ठीक है, लेस सैलरी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो है, बिकॉज इट इज लेस देन 10, ठीक है. इंक्रीमेंट्स इन सैलरी वंस इन अ वाइल, यहाँ पे रेयरली है आपका, ठीक है, वो मतलब दैट इज टोटली in the hand of employer itself, ठीक है. Benefit and prerequisite, employee get add-on benefit like medical facilities, insurance के through pension, leave, travel compensation and all, ठीक है. And unorganized sector में ये सब चीजें आपकी नहीं होती हैं. Examples we have this and that, ठीक है. Understood guys? चलो next one. So now time to summary the entire unit, ठीक है. तो अब हम लोग आएंगे किसके ऊपर, आपका समरी के ऊपर, ठीक है. So let's sum up, ठीक है. ये मतलब I found this particular because in this chapter ना this is going to help you, ठीक है. ये सारे statements आपको जल्दी से रिवाइज करने में हेल्प करेंगे. And even for module A and B, module C and D I have already done with that, जो 5 क्वेश्चन होते हैं आपके हर एक टॉपिक के पीछे, बट
examiner is not going to ask that kind of question in your examination, but that is the kind of reference question. वो भी practice करेंगे, ठीक है. So primary sector include all economic activities where there is a direct use of natural resources, agriculture, forestry, fishing, fuel, metals, minerals. ठीक है. Secondary sector include all economic activities that involve processing of raw material extracted from the primary sector, called secondary sector. ठीक है. An industrial economy is one in that which the secondary sector generate at least half of the country's national GDP and employment. ठीक है. इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की हम लोग जब बात कर रहे होते हैं. Tertiary sectors include all economic activities that produce services such as education, healthcare, banking, communication, others. Quaternary sectors is also known as knowledge sector. With this include activities such as teaching, research and development. Agriculture's share, quinary is आपका basically mind based. ठीक है, जिससे हमने समझा था. So agriculture shares in Indian economy's gross income has been declining, while the industrial and service sector share have been steadily increasing. Industry share of GBA has increased nearly 17% in 1951 to 29% in 2021-22. So 51 it was 17% industrial contribution. Now it is about 29%. The service sector proportion has increased from 33% to 53%. The construction sector is the second largest employment sector after agriculture. It employs 31 million people. Then green energy, fintech, information technology, electronic, pharmaceutical, automobiles, healthcare, this, they are categorized as sunrise sectors. The organized sector is one in which the job term are fixed and regular, and the employees are guaranteed work. Organized sector comprise manufacturing, this. Unorganized sector आपका other hand is one of the employment terms are not defined and regular and enterprises are not registered with the government. ठीक है. तो ओवरऑल समरी जो हमने अभी आपका अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस किया डिटेल में. ठीक है. आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वन यूजफुल. प्लीज डू कीप शेयरिंग योर फीडबैक्स ऑल्सो. ठीक है. तो कई बार हमें आपका फीडबैक्स जब मिलते हैं तो वी गॉट कि हाँ वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन. ठीक है. दो वी आर ट्राइंग टू आर बेस्ट कि हाँ जब आप एग्जामिनेशन में बैठो ना लाइक एक कोई ऐसा आपके साथ एक कोई मतलब धोखा ना हो कि आपने क्या पढ़ा और क्या आ गया वाला सीन. ठीक है. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, वो उतना पढ़ो क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया कि वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि हर एक कॉन्सेप्ट को हम पूरे डिटेल में पढ़ें, आगे पीछे पढ़ें. ठीक है. हमें लाइक वी डू नॉट हैव टू conduct some sort of research and all. We just our first or utmost priority is to clear this exam and to achieve that incentive. अगर आप जैसे PO लेवल पे भी हैं एटलीस्ट इट विल इम्पैक्ट योर सैलरी 5 to 6,000 पर मंथ. क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करके देख लो. एक सेशन में अगर क्लियर नहीं हुआ 6 महीने बाद आएगा तो 6 महीने में आपका मिनिमम लॉस कितना हो रहा है. फिर 6 महीने से आपका CI भी डिले होगा तो इट्स अ ह्यूज लॉस. जितना डिले करते जाओगे उतना ज़्यादा. तो फोकस रहो. ठीक है. चलो अब ये क्वेश्चंस हैं बहुत आसान है. ठीक है. विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इट इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी. क्वार्टरनरी सेक्टर इज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर आपका. ठीक है. ब्लैक रेवोल्यूशन आपका ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? पेट्रोलियम से रिलेटेड आपका था. ठीक है. सी विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू द नेशनल आउटपुट और GDP. ठीक है. इट इज सर्विस सेक्टर. ठीक है. तो डी विल बी राइट आंसर. विच सेक्टर प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, तो आपका आंसर क्या? एग्रीकल्चर. ठीक है. तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर. ठीक है. तो दिस इज द काइंड ऑफ, बट यू विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. या आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ उन्होंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं. ठीक है. एक्चुअली दे आस्क्ड वेरी नाइस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. मतलब IIBF वो मुझे ऐसा लगता है कि पहले पेपर पे सबसे ज़्यादा मेहनत कर लेता है आपके लिए उसको बढ़िया से डिज़ाइन करने में. ठीक है. तो दोस्तों ये आपका सेकेंड यूनिट. ओके. आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स दोज हु आर वाचिंग ऑन ऐप सो यू कैन शेयर if you have some recommendations, some feedbacks and all, do share me through the chat window. And if you are watching on YouTube, so you can mention on the comment section itself. ठीक है.
तो आज के लिए इतना ही करेंगे. दिस इज इट फ्रॉम माय साइड. Thank you for joining this session. Thank you for watching this session. I'll see you tomorrow with our next unit, which is all about the planning things, planning in Indian economy. So all around the 5-year plans and all. All right. So कल मिलते हैं आपका, और बढ़िया से पढ़ते रहिए, आराम से बढ़ते रहिए. कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन कॉल और थ्रू टेलीग्राम इटसेल्फ. ठीक है. सो वील बी डिस्कसिंग योर इश्यूज, क्या आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो इन ऑल, एंड आई ट्राई टू कम अप विद द बेस्ट सोल्यूशन. ठीक है, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करे. तो दिस इज इट. बाय बाय, टेक केयर ऑल. थैंक यू गाइज, थैंक यू.